My name is Pankaj. Today we have a fifth session on a Spark, and we are going to discuss. Hey, hi everyone. So today we are going to discuss one important topic in Spark. Whenever we will run a Spark, so we will pass some parameter to Spark, and how we can set how much we can pass the executor core, executor memory, executor. These are very important and generally asked during the time of interview. So I'll show you one basic application how we run the Spark application. So here you can see that this is a SH file, and inside it you can see that we track the logs we track the system log of our Spark application. So it is a best practice, guys. Always try to track your log every time. So it will helpful for debugging. You can easily debug where your code is break, what is the reason inside it. And now the important one we are going to discuss. This is the one. Normally we type Spark submit and the code, like whatever your code name, word count dot frame dot main, whatever it is it. But we never discuss these things. So this is very important part. So one by one you can see, like here I have given a master configuration, then deploy mode I have given, then how many executor I want for this code, means how we can decide how much executor we can assign for our application. Then executor memory, what will be the executor memory I'm gonna assign to my executor. And driver memory, we are already aware about driver. So driver generally drive your application. And executor cores, how many core we will provide. And the other configurations like shuffle service enable, Parquet we have enable Hive Parquet. Whenever you are trying to load your data on Hive in a Parquet format, so we will just give a property false. Memory overhead, generally in most of the interview this question is very important, like what is memory overhead and what exactly it, and the rest of the configuration. And the queue is very important part. So queue is nothing like whenever we create any cluster, जब भी हम कोई cluster बनाते हैं तो हम लोग उनमें बहुत सारी queues बनाते हैं कि इतने रिसोर्स हमारे इस क्यू में इतने रिसोर्स चल सकते हैं, इस क्यू में इतने रिसोर्स चल सकते हैं। क्योंकि क्लस्टर में क्या होता है कि जनरली आपका पूरा क्लस्टर में आपकी बहुत टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस चलती हैं, डिपेंड करता है। जैसे आपके डेव इन्वायरमेंट होते हैं, प्रॉड इन्वायरमेंट होते हैं, आपके क्यूए इन्वायरमेंट होते हैं। तो जैसे आपकी प्रॉड में एप्लीकेशन चलती हैं कि भैया यहाँ पे तो ये प्रॉड इन्वायरमेंट है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ मत करे, ना इसकी क्यू छेड़े, क्योंकि जनरली आपकी सारी कंपनी की जो मेन एप्लीकेशन होती हैं वो प्रॉड इन्वायरमेंट में चलती है। डेव इन्वायरमेंट में आप डेवलपमेंट करते रहते हो, अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते रहते हो। क्यूए इन्वायरमेंट का बहुत कंपनियों में भी होता है और किन्हीं में नहीं भी होता है, डेव होता है, सीधा प्रॉड होता है। बहुतों में क्यूए इन्वायरमेंट भी होता है। तो क्यूए में लोग क्यूए की टेस्टिंग करते हैं, जो भी डेवलपमेंट अगर जो भी आपने स्पार्क के एप्लीकेशन को डेवलप किया, जब वो रनेबल है तो आप वो कोड को क्यूए में मूव कर देते हो। तो क्यूए की टीम क्या करती है, उसकी टेस्टिंग करती है। अगर वो सेटिस्फाई होती है रिजल्ट सब कुछ से, तो फिर फाइनली वो कोड को मूव किया जाता है प्रॉड में। सो बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं, तो ऐसे नहीं है कि डेव वाला भी प्रॉड इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है जिससे हमारी प्रॉड की जॉब्स को इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रॉड मतलब प्रोडक्शन की जॉब्स को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, क्लस्टर्स में क्यूज बना दी। तो क्यू का काम क्या होता है कि रिसोर्स डिवाइड हो जाते हैं कि इस क्यू में भैया इतने कोर होंगे, इतने रैम होंगी, इतनी डेटा नोड होंगे, और इस क्यू में पर्टिकुलर आप प्रॉड की जॉब चलाना चाहते हो कि डेव की, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी कंपनी अलॉट करती कि भैया ये क्यू सिर्फ इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉड की जॉब्स के रन करने के लिए, तो सारी वहाँ प्रॉड की जॉब चलती है। ये क्यू डेव की है, तो वो डिसाइड होता है जब इंडस्ट्री में काम करोगे, तो वो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि हम लोग के लिए कौन सी क्यू है जो कि फ़ायदेमंद है, जिसके लिए हम जहाँ अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये क्यू डिसाइड करना होता है, और रेस्ट ये आपकी एप्लीकेशन है। तो वन बाई हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग स्पार्क की कॉन्फ़िगरेशंस में जाएं। जब भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, यहाँ पे आप सर्च देख सकते हैं स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन। सो डायनेमिक लोडिंग स्पार्क प्रॉपर्टी, व्यूइंग स्पार्क प्रॉपर्टी, अवेलेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें सारा का सारा पार्ट आएगा आपका, मेमोरी मैनेजमेंट सारा का सारा। सो
here we go. So like Spark provide 3 location to configure the system. एक तो Spark की properties होती है, control most application parameter and can be set using Spark conf object. और एक environment variables होते हैं, can be used to set the per machine such as IP address and Spark environment.sh में आप set कर सकते हो, और login can be configured through a log4j property. और आप कोशिश करो कि अपनी Spark की जो एप्लीकेशन बनाते हो उनमें लॉग ट्रैक करना स्टार्ट करो, कि हर एक लाइन में आप लॉग ट्रैक कर सकते हो। सो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वो सबसे पहले बता रहा है स्पार्क की प्रॉपर्टी के लिए, तो आप कॉन्फ का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप जब भी आप अपना कोड डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप स्काला में बना रहे हो, पाइथन में, तो आपको मैंने बताया था स्पार्क कॉन बनाते हैं। तो स्पार्क कॉन्फ में आप अपना सेट पैरामीटर में ये मेथड में पास कर सकते हो। आप लोकल में चलाना चाहते हो कि यान में चलाना चाहते हो, तो या सेट एप्लीकेशन नेम, आप अपनी एप्लीकेशन का क्या नाम रखना चाहते हो, तो ये सारा का सारा आप लोग कर सकते हो। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है, और फिर आप इसमें अपने कॉन्फ एप्लीकेशन पास करो। एक ये तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी स्पार्क की प्रॉपर्टीज को दे सकते हो। तो इसमें जैसे सेट मास्टर आप लोकल में चलाना चाहते हो कि यान में, जिसमें भी चलाना चाहते हो, एप्लीकेशन का क्या नाम रखना चाहते हो, ये सारे के सारे पैरामीटर आप ड्यूरिंग स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन पास कर सकते हो। फिर डायनेमिक लोडिंग स्पार्क प्रॉपर्टी। सो आप यहाँ पे डायनेमिक लोडिंग देख रहे हो कि हमने न्यू स्पार्क ऑन सीधा अभी इसमें पास किया था, यहाँ पे ये वाला तरीका देखा था। अब एक तरीका होता है कि डायनेमिक लोडिंग स्पार्क प्रॉपर्टी, या तो आप ऐसे पास कर सकते हो, स्पार्क सबमिट लिखा हमने, जो हम लोग करते आए है ना, तो उस टाइम पर हम लोग अपना नाम पास कर रहे हैं। जैसे मेरी एप्लीकेशन का नाम जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, हाइफन हाइफन, ये पैरामीटर पास कर रहे हैं। मास्टर मैं लोकल में चलाना चाहता हूँ, जैसे मेरी एप्लीकेशन में मैं कौन से मोड में चलाना चाहता था, आप देख रहे थे मैं यान में चलाना चाह रहा था, ये मतलब हडूप में चले मेरी एप्लीकेशन, हडूप का क्लस्टर मैं यूटिलाइज करूँ यहाँ। तो मास्टर लोकल का मतलब कि हडूप से कोई लेना देना नहीं था अभी उसका, वो बेसिकली यान में चला रहा है। और उसके ये इसका 4 का मतलब देने का मतलब होता है कि हम 4 कोर यूज करना चाहते हैं अपने लोकल के मशीन के। और अगर आप स्टार लगा दोगे, स्टार का मतलब जितने भी कोर होगा वो सारे कोर यूटिलाइज करेगा। तो लोकल के अंदर ये जो पास करने का होता है 4 स्टार, ये जनरली कोर होता है, ठीक है। और फिर लॉग एनेबल कर दिया कि मतलब इवेंट लॉग जो भी होंगे जनरेट होंगे उनको फॉल्स कर दिया है। बाकी ये एक एडिशनल प्रॉपर्टीज पास की गई है। और फिर आपकी जार, जो भी आपने जार बनाई होगी, स्काला में बनाई होगी और पाइथन में बनाई होगी, तो .py फाइल होगी जो चलेगी, ठीक है। ये नॉर्मली हम लोग ये वाला तरीका अभी कर रहे हैं जो कि है। तो ये तो हो गया स्पार्क में पास करने का तरीका, कि आपने एप्लीकेशन के अंदर ही कोड में ही जब आप लोग ये काम करते हो ना, जब आप ये एप्लीकेशन बनाते हो तो इस टाइम पे ही आप लोग पास कर देते हो कि भैया हमारा लोकल में चले, या जो भी आप यान में चलाना चाहते हो, जहाँ पे भी चलाना चाहते हो, या तो आप अंदर ही इनिशियल पास कर दो, या तो जब इस एप्लीकेशन को रन कर रहे हो उस टाइम पर आप पास करो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैं जैसे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाते वक्त मैंने पास कर दिया लोकल ये, तो ऐसे ही मैं अपने पास कर सकता हूँ कि मतलब एप्लीकेशन के अंदर मैं कहाँ चलाना चाहता हूँ। या तो आप जब डायनेमिक लोडिंग स्पार्क प्रॉपर्टी कर रहे होगे, मतलब डायनेमिक टाइम में लोडिंग कर रहे होगे, तो उस टाइम पे पास कर लो अपनी स्पार्क की प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे स्पार्क मास्टर, तो आप स्पार्क मास्टर देख रहे होगे, स्पार्क सबमिट विल ऑल्सो रीड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन फ्रॉम कॉन्फ स्पार्क डिफॉल्ट कॉन्फ। स्पार्क की जो डिफॉल्ट कॉन्फ होती है उसमें ये सब कुछ लिखा रहता है कि अगर आप स्पार्क का मास्टर नोड देखना चाहते हो तो मास्टर नोड इतने में चल रहा होगा, और ये एग्जीक्यूटर मेमोरी है, ये ट्रू है रहता है, ये कायरो सीरियलाइजर रहता है। तो ये सारी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपकी ऐसी कौन कौन सी स्पार्क की प्रॉपर्टीज है जो आप रन टाइम में पास कर सकते हो। तो स्पार्क की प्रॉपर्टीज लाइक जैसे कि एप्लीकेशन का नाम आप क्या रखना चाहते हो तो वो पास कर सकते हो आप, है ना। ड्राइवर कोर, ड्राइवर को कितने कोर देना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो, कि नंबर ऑफ कोर टू यूज फॉर द ड्राइवर प्रोसेस। स्पार्क ड्राइवर मैक्स रिजल्ट साइज, उसका रिजल्ट साइज कितना रखना चाहते हो, 1 GB। लिमिट ऑफ टोटल serialized रिजल्ट फॉर ऑल पार्टीशन फॉर ईच स्पार्क एक्शन should be at least 1 M, or 0 अंडर लिमिटेड, जॉब विल बी अबॉर्टेड। स्पार्क की ड्राइवर मेमोरी कितना रखना चाहते हो, जैसे कोर अलग होते हैं, मेमोरी अलग होती है, कि हमारा स्पार्क की एप्लीकेशन जो भी ड्राइवर बनेगा उसमें 1 GB होना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी इंस्टेंस में चल रहा होगा। ऐसा थोड़ी ना कि हम सारे के सारे कोर
सारी की सारी रैम एक ही एप्लीकेशन को अलॉट कर दे, एक ही ड्राइवर को अलॉट कर दे। तो अमाउंट ऑफ मेमोरी टू यूज द ड्राइवर प्रोसेस वेयर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इज इनिशियलाइज। मैंने बताया ना, ड्राइवर वो वाला पोर्शन होता है जहाँ स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज होता है इन द सेम फॉर्मेट जीवीएम मेमोरी स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स। फिर आप ओवरहेड मेमोरी दे देखते हो। तो ओवरहेड मेमोरी जनरली क्या होती है आपकी, जो ड्राइवर मेमोरी होती है ना उसका 10% होती है, ड्राइवर मेमोरी का 10% होती है ओवरहेड विद मिनिमम 384। तो जैसे कि स्पार्क ड्राइवर मेमोरी। सो अगर आप अगर आप देखोगे, अगर आप हडूप के क्लस्टर को यूज कर रहे हो और उसी के ऑन टॉप आप लोगों ने हडूप साइड, जैसे कि ये मान लो ये हडूप का पूरा क्लस्टर है, ये हडूप की डेटा नोड्स है, ये जिनके अंदर आप लोगों के क्या बनते हैं, कंटेनर्स बनते हैं। ये सारे नोड मैनेजर्स होते हैं, इनके अंदर कंटेनर बनते हैं। इन इन ये नोड मैनेजर होते हैं, मतलब ये डेटा नोड्स हैं सारी। इन डेटा नोड्स के अंदर क्या होते हैं, आपके कंटेनर्स बनते हैं जिन पे आपकी एप्लीकेशन चलती है। समझ रहे हो, कंटेनर्स बनते हैं, ये आपका एप्लीकेशन मास्टर डिसाइड करता है। ये यान की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारे कंटेनर होते हैं। इन कंटेनरों के अंदर आपके एग्जीक्यूटर बनते हैं, इन कंटेनरों के आगे अंदर आपके एग्जीक्यूटर बनते हैं। तो एक डेटा नोड में आप, या एक वर्कर नोड बोल दो, स्पार्क की वर्कर नोड बोल दो, क्योंकि अगर आपने स्पार्क ऑन टॉप ऑफ हडूप सेटअप किया हुआ है तो आप यान का यूज कर रहे हो, तो यान क्या करेगा, कंटेनर बनाएगा, कंटेनरों के अंदर आपके एग्जीक्यूटर्स होते हैं। सो आप इन एग्जीक्यूटर्स में अपनी स्पार्क की एप्लीकेशंस को रन करते हो। आपके जो भी पार्टीशंस बने होते हैं, जितना भी डेटा रहता है आपका इस डेटा नोड में लोकली जहाँ पे भी है, तो वहाँ से उठाता है ये डेटा और ये बनाता है। तो ध्यान रखना, कंटेनर के अंदर आपके एग्जीक्यूटर्स फॉर्म होते हैं अगर आप यान की कॉन्फ़िगरेशनों को यूज कर रहे हो बेसिकली। सो ड्राइवर मेमोरी क्या होती है, तो ड्राइवर भी आपका किसी ना किसी एग्जीक्यूटर में चलेगा। जो और जो ड्राइवर मेमोरी ओवरहेड होता है, वो ड्राइवर मेमोरी जितनी भी है 1 GB है, और उसका इंटू 0.10% होता है, विद मिनिमम इतना देना ही पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत उठता है कि ये जो मेमोरी ओवरहेड होता है वो ड्राइवर मेमोरी का पार्ट होता है कि अलग होता है। तो ये अलग होता है, ये भी बहुत एक चैलेंजिंग होता है कि बहुत बार हमें ना एरर आती है कि मेमोरी ओवरहेड का एरर आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो अमाउंट ऑफ नॉन हीप मेमोरी टू बी एलोकेटेड पर ड्राइवर प्रोसेस इन क्लस्टर मोड। अब दो टाइप के मोड होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। अभी तो हम लोग यहाँ पे जब आई गया है मोड के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, हम लोग दो मोड पास करते हैं, डिप्लॉय मोड, क्लाइंट मोड। दो मोड होते हैं, एक क्लाइंट होता है, एक क्लस्टर मोड होता है। तो इंटरव्यू में बहुत हॉट क्वेश्चन रहता है ये कि ये आपका क्लाइंट मोड क्या है, ये आपका क्लस्टर मोड क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो क्लाइंट मोड जनरली जब आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो, डेवलपमेंट फेज में हो, तो आप क्लाइंट मोड को यूज करो। और क्लस्टर मोड जब आप अपनी रन कर रहे हो, एप्लीकेशन को रन कर रहे हो मतलब प्रोडक्शन में, तो तब यूज़ करना होता है। तो क्लाइंट मोड के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, ये बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट मोड एंड क्लस्टर मोड। सो आप लोग डिफरेंसेस भी देख लो कि क्लाइंट मोड जनरली क्या होता है कि अगर मान लो आप अपने, जैसे अभी मैं अपनी एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, अभी तो मेरा एक सिंपल सा क्लस्टर है, एक सिंगल नोड का क्लस्टर है, तो मैं क्लाइंट मोड, और बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है ना वो क्लाइंट ही मोड होता है। अगर मैं यहाँ पे स्पार्क, मतलब अगर आप मेरे शेल कोड को देख रहे हो, तो आप अगर मेरे इस कोड को देख रहे हो जिसमें मैंने कोई मोड पास नहीं किया हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट मेरा क्लाइंट मोड ही है। ऐसा नहीं है कि ये क्लस्टर मोड में चल रहा होगा, ये बाय डिफॉल्ट मेरा क्लाइंट मोड में ही चलता है। आप दे लो या लिख लो, इट्स अप टू यू। ये बाय डिफॉल्ट मेरा जो चल रहा होता है, ये मेरा जो बाय डिफॉल्ट मोड होता है, ये मेरा क्लाइंट ही मोड होता है। अगर आप इसको लिखो या ना लिखो, ये बात एक ही बराबर है। तो अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब है आप क्लाइंट मोड में हो, और अगर आपको क्लस्टर मोड में चलाना है तो आपको स्पेसिफिकली लिखना होगा क्लस्टर मोड। सो अब बात आती भैया है क्या ये डिप्लॉय मोड, मतलब क्लस्टर या क्लाइंट मोड। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हाउ टू सबमिट अ स्पार्क एप्लीकेशन इन क्लाइंट मोड। अगर आप क्लाइंट मोड में सबमिट करना चाहते हो स्पार्क की एप्लीकेशन को, आप देख रहे हो कि इसने कहीं लिखा ही नहीं, स्पार्क सबमिट लिखा, क्लास का नाम लिखा, ये मेरा मास्टर का यूज कर रहा हूँ मैं, जहाँ मेरा स्पार्क चल रहा है, और अच्छा लिखा है डिप्लॉय मोड क्लाइंट लिखा हुआ है, ना भी लिखो चलेगा। और फिर ये एप्लीकेशन जार, जो जिस जार को रन करना चाहते हो, ये स्काला का प्रोग्राम है,
या जावा का है जिसे रन कर रहे हैं। अगर पाइथन का होता तो स्पार्क सबमिट ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, मास्टर लिखते जिसमें चल रहा है और डिप्लॉय मोड लिखते और .py फाइल लिखते जहाँ पे है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ पार्टीशन पास कर दिए 5, देख रहे हो लास्ट में 5 पार्टीशन पास कर दिए, तो डायनेमिक में भी पास कर देते हैं। सो अब यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट यू गो स्पार्क इंस्टॉल एंड स्टार्ट मास्टर एंड एनी नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ क्लस्टर, कमांड्स आर मेंशन इन बिलो, ऐसे चलेगा। सो स्पार्क एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इन 2 डिफरेंट वे। इस स्पार्क की एप्लीकेशन को सबमिट करने का तरीका 2 अलग अलग तरीका, एक क्लस्टर मोड है, एक क्लाइंट मोड है। तो इन क्लस्टर मोड द ड्राइवर विल गेट स्टार्टेड विद इन द क्लस्टर इन एनी ऑफ वर्कर मशीन। तो ये बोल रहा है ना कि इन क्लस्टर मोड द ड्राइवर विल गेट स्टार्टेड विद इन क्लस्टर इन एनी वर्कर मशीन। तो अगर आप देखोगे जो मैं आपको बता रहा था कि अब तक क्या होता था, ये मास्टर है, ये आपकी मान लो मास्टर नहीं, ये आपकी लोकल मशीन है, क्लाइंट मशीन है, जो भी मान लो, ठीक है। अगर आप क्लाइंट मशीन यूज कर रहे हो ना, तो आपका ड्राइवर जहां पे भी आप रन कर रहे हो ना, वहीं पे ड्राइवर लॉन्च हो जाएगा और वहीं आपकी मतलब एप्लीकेशन के डैग फैग जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था कि सबसे पहले स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनेगा, फिर आरडीडीज बनेंगी, डैग्स बनेंगे, फिर टास्क स्टेजेस बनेंगी, स्टेजेस टास्क होंगे, सारा काम होता है, फिर हम उनको अलॉट करते हैं। तो ड्राइवर आपका उसी मशीन में बन जाएगा जहां आपने स्पार्क की एप्लीकेशन को सबमिट किया हुआ है, जिस भी सर्वर में किया हुआ है, समझ रहे हो। अब ड्रॉबैक क्या होगा भैया, अगर आपने क्लाइंट मोड लिया, अगर मान लो आपका लैपटॉप बंद हो गया है ना, तो वो एप्लीकेशन भी स्टॉप हो जाएगी। मतलब अगर आपने मान लो अपनी मतलब वो किसी कारण वो सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो मतलब देयर आर एनी नंबर ऑफ रीजन क्लाइंट मोड। तो और अगर क्लस्टर मोड में करोगे तो आपका ये जो ड्राइवर है ना, वो आपका वहां नहीं बनेगा, वो क्लस्टर कहीं पे भी बन सकता है भाई। वो ड्राइवर यहाँ बन जाए, क्या पता है यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए। तो क्लस्टर मोड में ये बेनिफिट होता है। तो आप चाहे अपनी मशीन को बंद करके चले जाओ, कुछ भी करके चले जाओ, डजेंट मैटर, आपके कोड को कोई इंपैक्ट नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन रन कर रही होगी। तो जितने भी जो जॉब्स होती हैं वो सारी क्लस्टर मोड में चलाई जाती हैं। और एक और डिसएडवांटेज है कि क्लस्टर मोड में ना आप कभी भी स्पार्क की लॉग्स ट्रैक नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होता है लॉग ट्रैक करना। ये क्लस्टर मोड का डिसएडवांटेज है। मतलब अभी तो आपने क्या किया, आपने अपनी एप्लीकेशन इस मशीन में अपने मान लो सेल स्क्रिप्ट चलाई .sh, जिसके अंदर स्पार्क की एप्लीकेशन को चलाने की कमांड है, तो उस मशीन के लॉग आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन जब आप क्लस्टर मोड में चलाते हो ना, तो लॉग ट्रैक नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि भाई वो ड्राइवर कहाँ लॉन्च हुआ है, और क्योंकि वो उस सिस्टम के लॉग ट्रैक करेगा और वहीं पे सेव करना चाहेगा, तो आप कभी भी क्लस्टर मोड में लॉग ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन क्लाइंट मोड में आप लॉग ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि आप उसी सिस्टम के लॉग को ट्रैक कर रहे हो। तो स्पार्क की एप्लीकेशन को चलाने के हमारे 2 तरीके होते हैं, एक होता है हमारा क्लस्टर मोड और एक होता है क्लाइंट मोड। तो क्लस्टर मोड द ड्राइवर विल गेट स्टार्टेड विद इन द क्लस्टर एनी वर्कर मशीन, मतलब बहुत सारी डेटा नोड है, उन पे आपके वर्कर नोड है, तो किसी भी एक वर्कर नोड में आपका ड्राइवर लॉन्च हो जाएगा। सो द क्लाइंट कैन फायर द जॉब एंड फॉरगेट इट, मतलब तुम अपनी जॉब चला दो और भूल जाओ, वो चल रही होगी, कोई टेंशन की बात नहीं। क्लस्टर मोड की बात कर रहा हूँ। इन क्लाइंट मोड द ड्राइवर विल गेट स्टार्टेड विद इन द क्लाइंट, जहां क्लाइंट मशीन है ना, उसी में ड्राइवर लॉन्च हो जाएगा। सो द क्लाइंट हैज टू बी ऑनलाइन, तो क्लाइंट को ऑनलाइन रहना ही पड़ेगा, एंड इन टच विद द क्लस्टर, और क्लस्टर के टच में रहना होगा। सो इफ द क्लाइंट मशीन इज फार फ्रॉम द वर्कर नोड, देन इट मेक सेंस टू यूज अ क्लस्टर मोड। अगर आपकी क्लाइंट मशीन जो है, अगर वो मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, आपकी क्लाइंट मशीन यहाँ है, आपका क्लस्टर कहीं और है ना, तो भैया तो बेटर है कि आप क्लस्टर मोड यूज करो, ना कि क्लाइंट मोड यूज करो। मतलब आपका क्लस्टर कहीं और है, आपकी क्लाइंट मशीन कहीं और है जहाँ से आप जॉब सबमिट कर रहे हो। सो इन अवर एप्लीकेशन इन अ गेटवे मशीन क्वाइट क्लोज टू द वर्कर नोड, तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज रहे वर्कर नोड में, तो द क्लाइंट मोड कुड बी अ गुड चॉइस, मतलब हो सकती है गुड चॉइस, लेकिन ज़्यादा अधिकतर लोग क्लस्टर मोड कर सकते हो। तो इफ अवर एप्लीकेशन इन अ गेटवे मशीन क्वाइट क्लोज टू द वर्कर नोड, और वर्कर नोड के करीब है, तो आप फिर क्लाइंट मोड यूज कर लो, और अदरवाइज अगर नहीं हो तो फिर आप क्लस्टर मोड के ले जाओ। और अगर यहाँ पे और भी डेफिनेशन दी हैं, सर गौरव हेलो, बोल रहा यस,
हाँ हाँ। सर मैं बोल रहा कि क्लस्टर मोड में डिबगिंग कैसे करेंगे, फिर ट्रेस लेंगे, लॉक तो ले नहीं सकते। यही तो बड़ा चैलेंज हो जाता है कि क्लस्टर मोड में फिर डिबगिंग करना बहुत चैलेंजिंग है। इसमें से तो या ये डंप भी नहीं निकाल सकते, ट्रेस भी नहीं ले सकते। नहीं नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यही तो एक चैलेंज है सर क्लस्टर मोड। तो अगर सर आप यहाँ इसमें अगर कोई लेट्स, इशू आया तो पता नहीं हाँ, चलेगा। तो आप पहले फिर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये सब क्या होता है आप चेक करो भाई क्या है आपकी यही सब तो होता है कि मेन एप्लीकेशन बनाना नहीं है, उसको ऑप्टिमाइज करना, चलाना, ये बहुत मैटर करता है भाई। अभी कल के दिन क्लस्टर में आपकी जॉब स्टक हो गई, क्यों हो गई क्या पता, आपको रीजन करें। और भी टूल्स हैं जो ट्रैक, जिनके थ्रू ट्रैक कर सकते हो। ऊजी होता है, ऊजी के थ्रू आप देख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। ऊजी भी जब पढ़ोगे तब आपको और भी आइडिया होगा, हेल्पफुल रहेगा कि हम स्पार्क की एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, लेट्स ट्राई टू लुक अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड, सो क्लाइंट ड्राइवर रन ऑन द डेडिकेटेड सर्वर, यानी मास्टर नोड इनसाइड अ डेडिकेटेड प्रोसेस। तो दिस मीन्स इट हैज ऑल अवेलेबल रिसोर्स, इट इज disposal to the executor worker. Driver open up a dedicated NIT HTTP server and distribute the jar file specific to all worker node. मतलब ये एडवांटेज है क्लाइंट के, मतलब कि आप जहाँ ड्राइवर ओपन हुआ है डेडिकेट नेट, वहीं से आप सारी जार्स को, मतलब सारे वर्कर नोड को दे सकते हो। Because the master node has dedicated resource of its own, you don't need to spend worker resources for the driver program. तो यू डोंट नीड टू स्पेंड वर्कर रिसोर्सेज फॉर द ड्राइवर प्रोग्राम। मतलब जैसे ड्राइवर, मतलब जो वर्कर के रिसोर्सेज है ना, वो आप ड्राइवर प्रोग्राम के लिए एलोकेट नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने बताया ना, अगर क्लस्टर मोड होगा तो ड्राइवर किसी भी एक वर्कर नोड में लॉन्च हो जाएगा। तो हम वर्कर नोड को क्यों यूटिलाइज करें? इफ द ड्राइवर प्रोसेस डाई, तो यू नीड एन एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सिस्टम टू रीस्टार्ट द एग्जीक्यूशन। अगर ड्राइवर प्रोसेस ड्राई हो जाता है तो यू नीड एन एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सिस्टम टू रीसेट इट्स एग्जीक्यूशन, जो उसको रीसेट कर सके उसका एग्जीक्यूशन दोबारा, अगर ड्राइवर डाई हो जाएगा। क्लस्टर मोड क्या होता है? ड्राइवर रन ऑन वन ऑफ द क्लस्टर वर्कर नोड, किसी भी एक वर्कर नोड में चल रहा होगा वो ड्राइवर आपका, एंड द वर्कर इज चूजन बाय द मास्टर लीडर। तो वो मास्टर लीडर की मदद से चूजा जाएगा कि किस वर्कर में हमें ये ड्राइवर लॉन्च करना है। तो ड्राइवर रन्स अ डेडिकेटेड स्टैंड अलोन प्रोसेस इनसाइड द वर्कर। तो ड्राइवर प्रोग्राम takes up at least one core and a one dedicated amount of memory from one of the workers. This can be configured and driver program can be monitored from the master node और यूजिंग द हाइफर, ये इसके थ्रू भी आप कर सकते हो ट्रैक, हाइफर एफर सुपरवाइज फ्लैग एंड द रीसेट इन द केस ऑफ टाइम। तो व्हेन वर्किंग इन अ क्लस्टर मोड, all the jar related to the execution of your application need to be publicly available to the all worker node. तो जो जार है वो सारी नोट्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, एंड दिस मीन्स यू कैन आइदर मैनुअली प्लेस देम इन अ शेयर्ड प्लेस आर इन अ फोल्डर फॉर ईच ऑफ द वर्कर नोड। मैनुअली भी कर सकते हो आप। So which one is better? Not sure. That is actually for you to experiment and decide. And this is no better decision here. You again things from the former and later. It's up to you to see which one works better for your use cases. तो आप ऐसे कभी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेटर होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्पार्क सबमिट, यहाँ पे आपने यहाँ AWS में EMR। हेलो, हाँ सर। ओके। सो जैसे AWS में EMR होता है, so by doing SSH to a master, so if you are providing the option --- deploy mode cluster, अगर EMR के क्लस्टर में या Dataproc में आप अपनी Spark एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो the following things will happen. You won't be able to see the detail log in the terminal. जैसे बात हो रही थी कि आप लॉग देख ही नहीं सकते हो अगर आप डिप्लॉय मोड क्लस्टर यूज करते हो। जैसे Dataproc में आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो, और या आप EMR के क्लस्टर में कर रहे हो जो कि AWS का होता है, जिनमें Hadoop, Spark सब कुछ डला है, तो वहां आप डिटेल लोग कभी ट्रैक ही नहीं कर सकते हो। और सिंस ड्राइवर इज नॉट क्रिएटेड इन द मास्टर इटसेल्फ, तो मास्टर में तो क्रिएट होगा नहीं, तो यू वोंट बी एबल टू टर्मिनेट द जॉब फ्रॉम द टर्मिनल। तो यानी आप टर्मिनल से जॉब को टर्मिनेट भी नहीं कर सकते।
तो यहाँ से तो मैं कर सकता हूँ, अगर मान लो मैंने अपनी स्पार्क एप्लीकेशन चलाई, कंट्रोल सी कर दूं या शट डाउन कर दूं, तो मैं अपनी एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर सकता हूँ ऑन द स्पॉट। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन वहां पे चल रही है, मतलब क्लस्टर में चल रही है भैया, तो मैं उसे किल नहीं कर सकता हूँ। किल करने के लिए क्या होगा, मेरे को उसका एप्लीकेशन मास्टर चाहिए होगा, और फिर मैं यान की कमांड के थ्रू से किल कर सकता हूँ। यान की कमांड होती है यान हाइफन एप्लीकेशन माइनिंग। मेरे को अपनी स्पार्क की एप्लीकेशन का नाम पता होना चाहिए। तो फिर अगर ये भी डिपेंड करता है कि मैं यान के थ्रू चला रहा हूँ, अगर मैं यान के थ्रू नहीं चला रहा हूँ तो फिर मेरे लिए दूसरी कमांड देखनी होगी कैसे रन करना होगा। तो क्लस्टर मोड में ये डिसएडवांटेज है कि एक दो डिटेल लॉग आप ले नहीं सकते हो। दूसरा, आप अपनी एप्लीकेशन को वहीं से किल नहीं कर सकते हो, सिंस ड्राइवर इज नॉट क्रिएटेड इन मास्टर, तो यू वोंट बी एबल टू टर्मिनेट द जॉब फ्रॉम द टर्मिनल। बट इन केस ऑफ डिप्लॉय मोड यू विल बी एबल टू सी द डिटेल लॉग, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी लॉग ट्रैक हो रही है, and you will be able to terminate the job from the terminal itself. So there are basic things that I have noticed till now. ऐसे बहुतों ने अपनी अपनी एडवाइस दी कि उनके लिए कौन सा बेटर है, क्या है, ठीक है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो एक काम है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग सब अपना अपना व्यू मेरे को देना क्लाइंट और क्लस्टर मोड पे। मतलब मेरे को फ्राइडे तक या थर्सडे या फ्राइडे तक आप लोग मेरे को क्लाइंट मोड और डिस्ट्रीब्यूटेड मोड के ऊपर मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज कर दोगे कि सर मैंने इतना पढ़ा है, उसकी फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, डालो। इससे क्या होगा, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी कि हाँ ठीक है, ये और बेनिफिट है, इनके अलावा भी और क्या बेनिफिट है क्लाइंट मोड के, क्लस्टर मोड के। यू कैन जस्ट फाइंड आउट, एटलीस्ट यू कैन आंसर इट। आप बता सकते हो कि यूज केस पे डिपेंड करता है डिप्लॉयमेंट आप कैसे यूज कर रहे हो। क्लाइंट मोड में आपको ये एडवांटेज मिल जाएंगे कि आप लॉक ट्रैक कर सकते हो, आप अपनी जॉब को ऑन द स्पॉट टर्मिनेट कर सकते हो। अगर आप क्लस्टर में चला रहे हो, क्लस्टर में आपको टर्मिनेट करने के लिए आपको अपनी स्पार्क एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। अगर यान में चला रहे हो तो यान के थ्रू फिर आप अपनी एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज फाइंड आउट करने होंगे। गॉट इट? यस सर। तो हम लोग ने डिप्लॉय मोड के बारे में देखा, अब आ जाते हैं हम लोग दोबारा अपने ट्रैक पे। तो ये है हमारे डिप्लॉय मतलब क्लस्टर मोड। तो अमाउंट ऑफ, अभी हमने मेमोरी ओवरहेड की बात की है, ड्राइवर मेमोरी के। सो तो दिस इज ये क्या बोल रहा है, देखो, amount of non-heap memory to be allocated per driver process in cluster mode. So in MB, unless otherwise specified, this memory that account for things like VM overhead, virtual machine overhead, as intern string, other native overhead. So this tend to grow with the container size. ये कंटेनर के साइज के अकॉर्डिंग ग्रो होती रहती है। तो अगर हम बात करें ना, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये अगर कोई आपकी स्पार्क की एप्लीकेशन चल रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये आपका डेटा नोड है। डेटा नोड के अंदर आपके क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, कंटेनर्स बनते हैं। इन कंटेनर्स के अंदर आपके क्या होते हैं, एग्जीक्यूटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटर की मेमोरी प्लस ये जो मेमोरी ओवरहेड होता है, ये इन दोनों को मिला के आपकी कंटेनर की मेमोरी बनती है। ये एग्जीक्यूटर मेमोरी प्लस मेमोरी ओवरहेड, इन दोनों की मेमोरी मिलाकर आपकी कंटेनर की मेमोरीज बनती है। तो ये कंटेनर कौन लॉन्च करता है, ये आपको पता है, यान करता है कंटेनर लॉन्च। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है, दिस मेमोरी दैट अकाउंट फॉर, ये मेमोरी ओवरहेड की बात कर रहे हैं। लाइक वीएम ओवरहेड, मतलब जो एग्जीक्यूटर चल, मतलब वीएम वर्चुअल मशीन का जो ओवरहेड है, इंटर्न स्ट्रिंग्स या अदर नेटिव ओवरहेड, ये सारा। तो दिस टेंड टू ग्रो विद द कंटेनर साइज। अब ये कंटेनर साइज के साथ ही ग्रो करता है, 6 से 10% होता है। एंड दिस ऑप्शन इज करेंटली सपोर्टेड ऑन यान, और ये यान में सपोर्टेड है। And so Mesos and Kubernetes note non-heap memory includes off-heap memory when ये जो हम पास करते हैं, तो and memory used by the other driver process, Python process that goes to a Spark driver, and memory used by the non-driver process running the same container. The maximum memory size of the container to running driver is determine the sum of the मतलब आप जब भी कोई स्पार्क एप्लीकेशन रन कर रहे हो ना, तो आपको उसकी मेमोरी जो देनी है, ड्राइवर की मेमोरी, ये जो हमने डिसाइड की है ना, मान लो ये जो मेमोरी डिसाइड की है, तो ये हमारी दोनों को इंक्लूड करके हमने डिसाइड की है कि मतलब मान लो इसका, अगर इसका मैं 10% निकालू कितना आएगा, जीरो, मान लो आपकी एप्लीकेशन है, आप अपने ड्राइवर को 5 जीबी देना चाहते हो। कितनी देना चाहते हो, 5 जीबी देना चाहते हो। तो
तो 5 जीबी प्लस 5 का 10% अगर मैं निकालूं तो 1/10 यानी 0.5, लगभग मेरे को 5.5 फिर यहाँ पास करनी होगी। अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को अपने ड्राइवर की मेमोरी 5 जीबी रखनी है, तो आपको यहाँ पे फिर 5.5 जीबी पास करनी होगी, क्योंकि इसमें 10.5 जो होती है वो ओवरहेड मेमोरीज होती है, वो फालतू के लॉग्स वॉग बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका ड्राइवर कभी बंद हो जाए या लॉस हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो बंद होना नहीं चाहिए, तो आपको पता है कि इतना मिनिमम मेमोरी मेरे ड्राइवर को चाहिए, तो आप थोड़ा बढ़ा के दो, जिसमें आपकी ओवरहेड मेमोरी भी कैलकुलेट हो रही होगी। तो जो ये बोल रहा था, मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ ए कंटेनर टू रनिंग अ ड्राइवर, मतलब जिस कंटेनर में आप अपना ड्राइवर चलाना चाहते हो, है ना, तो इज डिटरमाइन द सम ऑफ द मेमोरी ओवरहेड एंड ड्राइवर मेमोरी। तो जो कंटेनर की मेमोरी होगी ना, वो 5 जीबी होनी 5.5 होनी चाहिए, जिसमें आप फिर आप 5 इसको दे दोगे और उस 5 का 10% जो भी होगा आपको मेमोरी ओवरहेड को देना होगा। मतलब दुनिया भर के जो हीप्स बन जाते हैं, कैचे मेमोरी, ये सब वही वाले मेमोरी ओवरहेड आ जाता है। तो कभी कभी आपको देखोगे ना, आपने 5 जीबी पास कर ली तो मेमोरी ओवरहेड का इशू आ जाता है कि 5 जीबी तो इसको चाहिए थी, फिर मेमोरी ओवरहेड को मिल नहीं रही थी, सारी एलोकेट इसको हो गई थी, मेमोरी ओवरहेड को मिली नहीं, उसने एरर फेंक दिया मेमोरी ओवरहेड की। तो कंटेनर जो भी आप पास करते हो तो उसके हिसाब से आपके माइंड में ये भी होना चाहिए, मेमोरी ओवरहेड मेमोरी पास होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे पैरामीटर है जो आप पास कर सकते हो। एग्जीक्यूटर की मेमोरी, तो एग्जीक्यूटर तो आपको पता ही है, जैसे कंटेनर के अंदर एग्जीक्यूटर चल रहा है, तो 1 जीबी दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ मेमोरी टू यूज पर एग्जीक्यूटर प्रोसेस इन द सेम एज फॉरवर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, ये रहा। फिर ये एग्जीक्यूटर की मेमोरी ओवरहेड को भी ध्यान रखना होगा, ये भी 0.10% होती है। तो जितनी भी आपके ड्राइवर बन रहे हैं, एग्जीक्यूटर बन रहे हैं, तो उनके ये आपके दिमाग में होना चाहिए मेमोरी ओवरहेड, ये बहुत ही वो है। तो दिस मेमोरी दैट अकाउंट फॉर थिंग्स लाइक वीएम ओवरहेड, इंटर्न स्ट्रिंग, नेटिव ओवरहेड, ये सब 6 से 10% होती है। तो आप जो भी एग्जीक्यूटर की मेमोरी एलोकेट करोगे तो उनमें ये सब देखो, जिसमें भी आपका कंटेनर में, जिस भी कंटेनर में आपका एग्जीक्यूटर चल रहा है ना, द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ द कंटेनर टू रनिंग एग्जीक्यूटर, जिनमें आपके मेन जॉब चल रही है स्पार्क की, इज डिटरमाइन द सम ऑफ, इनका सम होती है मेमोरी ओवरहेड का सम, एग्जीक्यूटर मेमोरी का, ऑफ हीप साइज का, और पाइस्पार्क मेमोरी का सम। तो ये जो हम पास करते हैं ना अपने इसमें, ये जो एग्जीक्यूटर मेमोरी पास कर रहे हैं, देख रहे हो कि मैं एग्जीक्यूटर की मेमोरी कितना देना चाह रहा हूँ, 25 जीबी देना चाह रहा हूँ। तो मान के चलो इस 25 जीबी में 20 जीबी अगर मैं मान के चलूँ आपका एग्जीक्यूटर की एक्चुअल मेमोरी मिल रही है, 5 जीबी आपके फालतू की चीजों के लिए। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि एग्जीक्यूटर की मेमोरी आप जो भी दे रहे हो, तो माइंड में आपका ये भी रहना चाहिए, जिस भी कंटेनर में आपका चल रहा है, समझ रहे हो, जिस भी कंटेनर में आप अपना एग्जीक्यूटर चला रहे हो, तो अगर 25 जीबी आप चाहते हो मेरे एग्जीक्यूटर को एक्चुअल में मिले, तो बढ़ा के दो 28 जीबी, तो बाकी इनमें खर्च हो जाता है। तो ऐसे ही आपके एग्जीक्यूटर्स को सारे रिसोर्स एलोकेटेड होते हैं। यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी हैं कि आप पास कर सकते हैं। ये डिप्लॉय मोड आप पास कर रहे हो, द डिप्लॉय मोड ऑफ ए स्पार्क ड्राइवर प्रोग्राम आइदर क्लाइंट हो सकता है या क्लस्टर, विच मीन्स टू लॉन्च अ ड्राइवर प्रोग्राम लोकली, या तो लोकली आप लॉन्च कर रहे हो लोकल मशीन में, या रिमोटली किसी क्लस्टर में ऑन द वर्कर नोड। तो ये सारी बहुत सारी लॉग प्रॉपर्टी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे पूछे जाते हैं। मतलब कि अगर आपको अच्छा है, क्योंकि आपको टेक्निकली आप साउंड है, आपको आता है स्पार्क प्रोग्राम, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाउ इफेक्टिवली मैं अपने कोड को रन कर सकता हूँ, कैसे रन कर सकता हूँ, ये सारे के सारे पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, वो है हमारा, मैं आपके 10 मिनट और लूंगा, और जो कि इम्पोर्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है हमारा। हाँ, सो गाइज ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटर कोर मेमोरी फॉर स्पार्क एप्लीकेशन रनिंग ऑन यान। जब आप रनिंग यान में चलाते हो, तो आप देख रहे हो क्या आप पास करते हो स्पार्क सबमिट, आपका क्लास का नेम, ये तो डिपेंड करता है आप स्काला में चला रहे हो, या अगर स्काला में चला रहे हो तो आप फिर क्लास नेम पास करते हो। अब आप कितने एग्जीक्यूटर पास करोगे, कितने कोर पास करोगे, कितने मेमोरी पास करोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे? अभी पूरा चैप्टर ये डिफाइन कर रहा है कि आप अपनी स्पार्क एप्लीकेशन को कितने एग्जीक्यूटर देना चाहते हो, कितने कोर देना चाहते हो, कितने एग्जीक्यूटर मेमोरी देना चाहते हो, ये सब आप डिसाइड करते हैं। तो ये वंडर है कि एवर वंडर हाउ टू कॉन्फ़िगर, ये सब कैसे देना होता है।
सो आपको पता है कि फॉलोइंग लिस्ट कैप्चर सम रिकमेंडेशन टू कीप अ माइंड वाइल कॉन्फ़िगरिंग देम। आप यान में चला रहे हो, तो व्हेन वी रन अ स्पार्क एप्लीकेशन यूजिंग अ क्लस्टर मैनेजर लाइक यान, अभी मैंने आपको बोला है ना कि यान के थ्रू चला के देखो, अभी आप स्टैंड अलोन मोड का यूज कर रहे हो, यान के थ्रू चला के देखो। तो अगर आप यान का यूज कर रहे हो, क्लस्टर मैनेजर लाइक यान, देयर विल बी अ सेवरल डेमन्स दैट विल बी रन इन द बैकग्राउंड। अगर आप यान का यूज कर रहे होगे ना, तो बहुत सारी सर्विसेज चल रही होंगी, जैसे नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, डेटा नोड, रिसोर्स मैनेजर, टास्क मैनेजर, ये सब चलता है ना जब आप अगर यान को यूज कर रहे हो। सो वाइल स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर, जब आप नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर डिफाइन कर रहे होगे ना, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी लीव असाइड इनफ कोर, एटलीस्ट वन कोर पर नोड फॉर दीज डेमन टू रन स्मूथली। तो अब अगर आप यान मोड यूज कर रहे हो ना भाई, तो अगर आपका जो एग्जीक्यूटर के कोर होंगे, तो एक कोर तो साला ये सारी सर्विसेज खा जाएंगे, तो यानी आपको 4 कोर मिलेंगे। अगर मान लो एक मशीन है, उस मशीन में 5 कोर है, और आप अपनी एप्लीकेशन को मान के चलो कि आपकी एप्लीकेशन को 4 ही कोर मिलेंगे, एक कोर तो ये सारी सर्विसेज खा जाएंगे। तभी तो याद होगा जब कभी मेरे को वो इशू आ रहा था, मैंने अपने कोर बढ़ा दिए थे कि एक कोर तो मेरे वो सारे सर्विसेज खा जाती है। जब मैं मैप्रोड्यूस की एप्लीकेशन चला रहा था, मेरे को वो इशू आ रहा था, तो मैंने कोर बढ़ा दिए थे। कोर से क्या हो रहा था कि 2 कोर ले रहा था, 2 कोर में यार एक कोर तो मेरा वही खा जा रहा था, और फिर मैं मल्टीपल फाइल रीड कर रहा था, तो उनके लिए मेरे को और कोर चाहिए थे, तो मैंने अपने कोर बढ़ा दिए। तो जब भी आप यान मोड यूज करोगे स्पार्क की एप्लीकेशन के लिए, तो एक कोर तो दिमाग में रखो कि आपको हडूप की सारी सर्विसेज के लिए देना है। फिर यान एप्लीकेशन मास्टर चलता है, तो एप्लीकेशन मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब आपको पता है स्पार्क की एप्लीकेशन आप यान में चला रहे हो, तो यान में अब सब पिक्चर में आएंगे एप्लीकेशन मास्टर। तो एप्लीकेशन मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगोशिएटिंग रिसोर्स फ्रॉम द रिसोर्स मैनेजर and working with node manager to execute and monitor the container and their resource assumption. So if we are running a Spark on Yarn, अगर आप Yarn में run कर रहे हो, तो then we need to a budget in resource that application master would need इतना MB, यानी कम से कम 1 GB और 1 एग्जीक्यूटर, यानी मतलब एक एप्लीकेशन मास्टर को देना ही पड़ेगा भाई, 1 MB और 1 को एग्जीक्यूटर, 1 एग्जीक्यूटर में और 1 MB आपको एप्लीकेशन मास्टर को देनी पड़ेगी। यानी आप 1 एग्जीक्यूटर कम और मान के चलो, कम करके चलो कि भैया मेरे को 1 एग्जीक्यूटर और कम करना है। मान लो आप 10 एग्जीक्यूटर हैं आपके, तो 1 एग्जीक्यूटर तो आपके मान लो या एप्लीकेशन मास्टर खा रहा होगा, 1 एग्जीक्यूटर तो आपका एप्लीकेशन मास्टर खा रहा होगा, तो अब आपके पास सिर्फ 9 एग्जीक्यूटर्स हैं। HDFS throughput, तो HDFS client has trouble with tons of concurrent thread. It was observed that HDFS achieve full write throughput with 5 tasks per executor. So it's good to be keep number of core per executor for the number. फिर मेमोरी ओवरहेड आ गया, ये देखो ये जो जैसे कंटेनर में चल रहा है ना हमारा, तो HDFS थ्रूपुट का बोल रहा है कि HDFS क्लाइंट हैज ट्रबल विद टन्स ऑफ कॉन्करेंट थ्रेड, बहुत सारे इसमें रिक्वेस्ट आती रहती है, बहुत सारे थ्रेड बनते हैं। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट HDFS आर्काइव फुल राइट थ्रूपुट with 5 tasks per executor. So it's good to keep the number of core per executor below that number. इससे कम ही रखो तो बेटर है। अब मेमोरी ओवरहेड क्या होता है? फॉलोइंग पिक्चर डेप्रिशिएट स्पार्क यान मेमोरी यूसेज। तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्पार्क एग्जीक्यूटर मेमोरी, तो सफल के लिए कुछ चाहिए होती है, कुछ मेमोरी आपको समझ रहे हो कि सफल के लिए भी मेमोरी चाहिए होती है भाई। अब यहाँ पे देख रहे हो स्पार्क यान एग्जीक्यूटर मेमोरी हेड, मतलब एक कंटेनर का जो बन रहा है ना, एक एग्जीक्यूटर जो बन रहा है कंटेनर, उसमें ये सारी मेमोरीज होती है। स्पार्क एग्जीक्यूटर मेमोरी जो जिस पे काम हो रहा है, फिर सफल के लिए, स्टोरेज फ्रैक्शन के लिए, यान के लिए, इन सब की वजह से बहुत एरर आती है, आपकी एप्लीकेशन फटती रहती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो फुल मेमोरी रिक्वेस्ट टू यान पर एग्जीक्यूटर। अगर आप यान से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को सारी मेमोरी चाहिए, मतलब फुल मेमोरी रिक्वेस्ट टू यान पर एग्जीक्यूटर, या मतलब हर एग्जीक्यूटर को फुल मेमोरी चाहिए, तो आपके दिमाग में होनी चाहिए एग्जीक्यूटर मेमोरी प्लस ओवरहेड मेमोरी। ओवरहेड मेमोरी, तो अब स्पार्क यानी एग्जीक्यूटर मेमोरी ओवरहेड क्या होता है? वो होता है आपका 7% ऑफ स्पार्क एग्जीक्यूटर मेमोरी। मतलब अगर एग्जीक्यूटर की मेमोरी 15 GB है, उसका 7% निकाल लो 15 GB का, वो मिलाकर आपकी पूरी एक एग्जीक्यूटर की मेमोरी बनेगी। तो अगर हमने रिक्वेस्ट किया 20 GB पर एग्जीक्यूटर, जैसे आपने देखा है कि मैं हर एक एग्जीक्यूटर को 25 GB दे रहा था, तो अगर मैंने
रिक्वेस्ट किया तो मान के चलो एप्लीकेशन मास्टर विल एक्चुअली गेट 20 जीबी, मतलब एप्लीकेशन मास्टर विल गेट 20 जीबी मिल रहा होगा, क्योंकि इसका अगर मैं 7% निकालूं तो वो लगभग कितना आएगा, मतलब मान के चलो कि 20 का 7%, हाँ, सो 20 प्लस 7% ही लगभग इतना हो रहा है, 23 जीबी मेमोरी फॉर अस, इतना हो रहा है हमारा पास, समझ रहे हो जी। तो हमें इतनी मेमोरी, तो रनिंग एग्जीक्यूटर विद टू मच मेमोरी ऑफन रिजल्ट इन एक्सेसिव गार्बेज कलेक्शन डिले। तो रनिंग एग्जीक्यूटर विद टू मच मेमोरी, अगर ज्यादा मेमोरी में चलाओगे कभी कभी तो ऑफन रिजल्ट इन एक्सेसिव गार्बेज कलेक्शन डिले। एंड रनिंग टाइनी एग्जीक्यूटर, मतलब बहुत ही कम में चलाओगे विद अ सिंगल कोर एंड जस्ट इनफ मेमोरी नीडेड टू रन अ सिंगल टास्क, फॉर एग्जांपल थ्रो अवे द बेनिफिट दैट कम फ्रॉम रनिंग मल्टीपल टास्क इन अ सिंगल जीबी। अब यहाँ पे देखो हैंड्स ऑन दिया हुआ है कुछ, अब इनसे आपको थोड़ा क्लियर होगा। मान लो आपके पास 10 नोड है आपके क्लस्टर में और हर नोड पर 60 कोर है और 64 जीबी रैम है, ये आपकी एक क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है। तो भैया हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये बोल रहा है हमारे 10 नोड है, ठीक है, 10 नोड और कितने बोले उसने, 16 कोर, कितनी रैम बोली उसने, 64 जीबी रैम, मतलब हर एक नोड की 16 कोर है, 64 जीबी है। अभी मैं अपने मान के चलता हूं नंबर ऑफ कोर कितने अवेलेबल है मेरे क्लस्टर में, तो 16 इंटू 10, लगभग 160 कोर अवेलेबल है मेरे पास, इतने कोर अभी मेरे क्लस्टर में अवेलेबल है। रैम कितनी अवेलेबल है, रैम रैम कितनी अवेलेबल है, 64 इंटू 10, लगभग 640 जीबी रैम अवेलेबल है मेरे क्लस्टर में, इतनी रैम अवेलेबल है। ये मेरे पास अभी इतनी डिटेल है। अब मेरे को ध्यान में रख के चलना होगा सब कुछ। तो पहली अप्रोच क्या है, टाइनी एग्जीक्यूटर, यानी 1 एग्जीक्यूटर पर कोर। अगर मैं हर एक कोर के लिए एक ही एग्जीक्यूटर लूं, टाइनी अप्रोच चल रहा है, एक बोल रहा है टाइनी और एक बोल रहा है एक्सेसिव। सो अगर मेरी टाइनी अप्रोच टाइनी एग्जीक्यूटर रही, मतलब एग्जीक्यूटर रहे फर्स्ट अप्रोच, तो 1 एग्जीक्यूटर पर कोर। तो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर, अगर मेरे पास कितने टोटल 160 हैं, और अगर मैं पर एग्जीक्यूटर कोर लूंगा, है ना, तो अभी अभी मेरे को क्या डिसाइड करना है कि मेरे कितने एग्जीक्यूटर बनेंगे, मेरे नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर कितने बनेंगे। अगर मैं एक एप्लीकेशन को चला रहा हूं तो मेरे नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर कितने बनेंगे। तो अभी मेरे को बस इतनी कॉन्फ़िगरेशन पता है कि मेरे को इतने कोर हैं और 64 जीबी रैम है। तो कायदे से देखा जाए तो 64 कोर हैं और 10 मशीन है, तो लगभग 160 कोर हैं। और अगर मैं टाइनी अप्रोच लेके चल रहा हूँ कि सिर्फ एक कोर दूंगा मैं एक एग्जीक्यूटर को, तो इस हिसाब से मेरे 160 एग्जीक्यूटर बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर 160 बनेंगे। एग्जीक्यूटर कोर, यानी हर एक एग्जीक्यूटर को कितने कोर दे रहा हूं, एक कोर, पहली अप्रोच डिसाइड होगी। तो मेरा डिसाइड हो गया कि मेरे 160 एग्जीक्यूटर, और एग्जीक्यूटर हर एक एग्जीक्यूटर को कितने कोर दिए, एक कोर दिए। और एग्जीक्यूटर की मेमोरी अब ये डिसाइड होगी कि ये कैसे मेमोरी डिसाइड होती है। सो जो एग्जीक्यूटर की मेमोरी होगी वो मेरी होगी अमाउंट ऑफ मेमोरी पर एग्जीक्यूटर, और तो मेमोरी पर नोड एंड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर पर नोड। तो अगर मेमोरी पर नोड, हर एक नोड में कितनी मेमोरी है, 64 जीबी है ना, और नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर पर नोड, और कितने एग्जीक्यूटर चल रहे हैं, 16 चल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब भैया एक नोड में मेरे एक नोड में 16 कोर है, तो 16 एग्जीक्यूटर, और उस नोड की रैम कितनी, 64, तो 16 से डिवाइड कर दूंगा तो हर एक की वो पता चल जाएगी। तो लगभग मेरा 4 जीबी आ जाएगा मेरा एग्जीक्यूटर मेमोरी। तो पता चला कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने तीनों की तीनों चीज। तो अगर आपको क्लाइंट अगर देगा
क्लाइंट ने आपको दे दिया कि भैया मेरे पास ये नोड है, 10 नोड है, 16 कोर है, हर एक नोड की 16 कोर है और 64 जीबी है। तो आप डिफाइन करो कि मेरे को कितने वो लगेंगे, मतलब मेरी क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर का मेरी टाइनी अप्रोच रही, मतलब एक कोर दे रहा हूं मैं सिर्फ एक एग्जीक्यूटर को, तो इस हिसाब से मेरे 160 कोर 160 एग्जीक्यूटर होंगे। अब 160 एग्जीक्यूटर होंगे तो नंबर ऑफ अब क्या निकालना था, एग्जीक्यूटर मेमोरी, नंबर ऑफ क्या क्या निकालने के लिए बोला था। हाँ, नंबर ऑफ, ये तो एग्जीक्यूटर कोर पता ही चल गए कि एक कोर होगा, मतलब सारों को हम लोग कितना दे रहे हैं, 1 कोर हो जाएगा। और जो मेमोरी होगी एग्जीक्यूटर की मेमोरी, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर कोर्स पर 1 होगा। अब एग्जीक्यूटर की मेमोरी कैसे डिफाइन होगी, एग्जीक्यूटर की मेमोरी कैसे डिफाइन हो रही है, वो कैसे हो रही है डिफाइन। अब मेमोरी कैसे निकालेंगे कि 60 कोर है एक नोड में, तो एक नोड में हमारे, एक नोड की बात कर रहे हैं अभी, एक नोड में हमारे कितने क्या बनेंगे, 16 एग्जीक्यूटर बनेंगे। और एक नोड को 64 जीबी अलॉट है मेमोरी, तो 16 से डिवाइड कर दूंगा तो लगभग जो भी राउंड फिगर आएगा वो 4 जीबी तक आएगा। तो यानी 4 जीबी वो रहेगी मेमोरी। तो ये वाली अप्रोच हमारी जब टाइनी एग्जीक्यूटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो with only one executor per code, as we discussed above, will not able to take advantage of running multiple tasks in same. हम लोग इसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे टाइनी एग्जीक्यूटर में। वी विल नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ रनिंग मल्टीपल टास्क इन सेम JVM. ऑल्सो शेयर्ड कैची वेरिएबल लाइक ब्रॉडकास्ट वेरिएबल एंड एक्यूमुलेटर, ये स्पार्क में पढ़ाऊंगा मैं, will be replicated in each core of the node, which is 16 times. So we are not leaving enough memory overhead for Hadoop yarn daemon process. We are not counting in application manager. ये अच्छी अप्रोच नहीं होती हमारी, मतलब बहुत चीजें ना हडूप यान को दिया है ना कुछ दिया है इस वाली अप्रोच में। अब आता है सेकेंड अप्रोच, फैट एग्जीक्यूटर, यानी हम 1 एग्जीक्यूटर पर नोड। अब हम चाह रहे हैं कि एक नोड में एक ही एग्जीक्यूटर बने। अब तक क्या बन रहे थे, 16 एग्जीक्यूटर बन रहे थे एक नोड में, नहीं बन रहे थे कि 16 कोर थे तो एक नोड में हमारे 16 एग्जीक्यूटर बन रहे थे। अब 10 नोड है तो मैं 10 एग्जीक्यूटर ही चाहता हूं, यानी सारे के सारे कोर तुमने एक ही नोड को दे दिए और 64 जीबी रैम एक को चढ़ गई। तो इसके क्या होगा, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर 10 ही बनेंगे क्योंकि 10 नोड है, और एग्जीक्यूटर कोर कितने होंगे, 16 कोर, यानी एक कोर एक नोड में एक बन रहा है तो सारे कोर उसी को अलॉट, और रैम क्या है, सारे उसी एग्जीक्यूटर को रैम अलॉट हो जाएगी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, विद 16 कोर पर एग्जीक्यूटर, मतलब सारे कोर तुमने एक ही एग्जीक्यूटर दे दिया, अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन मैनेजर एंड डेमन प्रोसेस आर नॉट गुड काउंटेड फॉर, तो HDFS थ्रूपुट विल हर्ट। तो HDFS इसमें पैनिक होगा, तो इट विल रिजल्ट एक्सेसिव गार्बेज रिजल्ट, तो इसमें बहुत सारा गार्बेज रिजल्ट होगा, नॉट गुड। अब आता है इनके बिटवीन थर्ड अप्रोच, बैलेंस बिटवीन फैट एंड टाइनी। तो इसमें आप देखोगे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेंशन अबव, लेट असाइन 5 कोर पर एग्जीक्यूटर। हम हर एक एग्जीक्यूटर को 5 कोर देते हैं, तो एग्जीक्यूटर कोर 5 फॉर गुड HDFS थ्रूपुट। लीव 1 कोर पर नोड हडूप यान डेमन्स, तो यानी 10 नोड में हमने देखा, मान लो 10, अगर हम 5 कोर एग्जीक्यूटर देते हैं तो हमारे एक नोड में 3 एग्जीक्यूटर बनेंगे उस हिसाब से, क्योंकि 16 कोर है हमारे, है ना। और एक कोर, क्योंकि एक कोर हमने उनकी, जैसे 10 नोड है ना, अगर हम मान के चलते हैं, अगर मेरे 10 नोड है, मान लो एक नोड की बात करता हूँ, एक नोड में मेरे 16 कोर है, तो उस एक नोड में एक कोर तो मैं हडूप की सर्विसेज को दे देता हूँ जो हडूप का बना है, तो मेरे पास 15 कोर बने। 15 कोर बने तो 15 कोर को, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एग्जीक्यूटर कोर, मतलब एक एग्जीक्यूटर को 5 कोर मिले, तो उस हिसाब से मेरे नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर 3 बनेंगे।
तो एक नोड में मेरे 3 एग्जीक्यूटर बनेंगे, तो पूरे क्लस्टर में मेरे टोटल कितने एग्जीक्यूटर अवेलेबल होंगे? 10 × 3 यानी 30 एग्जीक्यूटर मेरे अवेलेबल होंगे, जिनको 5 कोर अलॉट है और 64 जीपी है। अब इस 64 को अब हमें हर एग्जीक्यूटर को कितनी रैम देनी होगी, इतना तो डिसाइड हो गया कि 3 कोर बन रहे हैं, 3 एग्जीक्यूटर बन रहे हैं। अब उनको कैसे हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम उनको कैसे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो अब ये देखो नंबर ऑफ अवेलेबल तो पता चल गया हमें 30 एग्जीक्यूटर बने, क्योंकि टोटल इतने कोर अवेलेबल है ना, और 5 कोर अलॉट कर रहे तो 30 एग्जीक्यूटर बन गए। और अब इस 30 में एक एग्जीक्यूटर तो हम किसके लिए छोड़ देंगे? एप्लीकेशन मास्टर के लिए। तो टोटल 29 एग्जीक्यूटर अवेलेबल है हमारे पास। तो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर पर नोड, हर एक नोड को हम कितना एग्जीक्यूटर दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं। तो मेमोरी पर एग्जीक्यूटर, तो अगर हम 64 को 3 से डिवाइड करें तो 21 जीबी आ रही है। अब इस 21 जीबी का 7% निकालें तो 3% जीबी जो होगी वो ये होगी हीप ओवरहेड के लिए होगी। सो एक्चुअल जो एग्जीक्यूटर मेमोरी होगी ना, वो 21 में से 3 माइनस करो, यानी 18 जीबी आपको देनी पड़ेगी एग्जीक्यूटर मेमोरी। सो रिकमेंडेशन कॉन्फ़िगर क्या होगा? 29 एग्जीक्यूटर, 18 जीबी मेमोरी और 5 कोर ईच। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। आप अपनी एप्लीकेशन को जब भी रन करोगे तो आप जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर पास करो इतने करो, 18 जीबी इतनी पास करो, 5। अब भले आपके क्लस्टर में इतना सारा अवेलेबल है रिसोर्स, अगर कायदे से देखा जाए इतना रिसोर्स अवेलेबल, 160 कोर है, 64 जीबी है, मतलब 640 जीबी रैम है, लेकिन आप अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए मैक्सिमम आप इतना यूटिलाइज करो कि हम 29 एग्जीक्यूटर बनाएं, 18 जीबी मेमोरी बनाएं और 5 कोर बनाएं। ठीक है, तो ये स्पार्क की एप्लीकेशन को रन करने का तरीका है। सो गाइज आज हम लोगों ने यार पार्टीशन वाला टॉपिक फिर भी रह गया है, आज हम लोग ने बस ये वाला पार्ट देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्टीशन वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन आप तब तक मेरे को शेयर करोगे कि क्लाइंट मोड और ये क्या होता है, और ये वाली और पार्टीशंस के बारे में और भी पढ़ोगे कि पार्टीशन अब कैसे डिसाइड होंगे, ये आपने आज देखा है। फिर उसी के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अभी एक बार में नहीं आएगा, लिंक दिया है, एक बार इसको अपनी डिटेल में पढ़ना तो आपके दिमाग में बैठेगा कि हाँ भैया हम लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो आज आप अपनी एप्लीकेशन का सेल स्क्रिप्ट बनाना, उनमें पास करके देखना कि कितने एग्जीक्यूटर देने होंगे, कितनी मेमोरी देनी होगी, कितने ड्राइवर देने होंगे। ठीक है, आर वी गुड? ओके, सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है यार ये, इसको बहुत पढ़ो, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको अगर बोल देंगे भैया हमारे इतने रिसोर्स है, तो आप कैसे यूटिलाइज करोगे एप्लीकेशंस के लिए? अब आपकी एक एप्लीकेशन को आप इतने रिसोर्स दे रहे हो, अगर 10 चलेंगे फिर 10 एप्लीकेशन को कैसे कैसे दोगे, कितने कोर अलॉट करोगे, क्या करोगे? फिर इसके डीपर जाएंगे पार्टीशन लेवल पे। ओके, थैंक्स फॉर दिस सेशन, लेट्स कनेक्ट टुमारो, और नॉट टुमारो, सैटरडे संडे। सो सैटरडे मेक श्योर यार आपका 8 से 8:30 के बीच में एक टेस्ट होने का, जिसमें आपको तुरंत एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी होगी विद इन हाफ एन आवर। ओके, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, बाय बाय गाइस।